A very good morning, friends. Today we are going to learn a new topic in English grammar, that is change the degree. Now this topic is also very common. The students are taught at very early age, but still somehow they get confused. So today I want to make it very easy for you so that you can change any sentence from positive to comparative, comparative to superlative degree. Now what is the degree? Change the degree. Actually this is the comparison of adjectives. Now very first thing, basic thing, what is an adjective? Adjective क्या होता है वो समझना बहुत ही जरूरी है. So suppose this is a whiteboard. This is a whiteboard. So here white is adjective. Why white is adjective? Because white says something about the board. The word that says something about the noun is called an adjective. मतलब जो भी वर्ड नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है. दिस इज अ ब्राउन फैन. दिस इज अ ब्राउन फैन. सो ब्राउन इज एन एडजेक्टिव. इट वॉज अ ग्रे एलिफेंट. सो ग्रे इज एन एडजेक्टिव दैट सेज समथिंग अबाउट द नाउन एलिफेंट. सो you understood adjective. Now there are 3 degrees of adjectives. We have to learn how to compare them. Okay, so there are 3 forms of the degree as I have written here on the board for you. First one is big, bigger, biggest. Means this positive and comparative are formed by adding er. You can form comparative by adding er and superlative by est. So big, bigger, biggest, small, smaller, smallest. 2 adjective means this kind of adjective form this way. Now there is one more way of forming adjective, that is the second way. Beautiful, more beautiful, most beautiful. If you forget big, bigger, biggest, you can't write more big and most big, or you can't write beautiful, more beautifuler and most beautifuler. No, you can't write that way. Means where you have to use more and most, there you must use more and more, most only, and where you have to use er and est, you have to use that. So beautiful, more beautiful, most beautiful, wonderful, wonderful, more wonderful, and most wonderful. So where you have to use more and most, you have to keep in mind, and here er and est. But there are certain students in the class or in the school who don't follow any rules. So there are some adjectives, they don't follow any rules. Like here, good, well, good or well, better and best. Means well, better, best, and bad, worse and worst. Bad, worse and worst. Now we have to learn how we can change a degree, a sentence from positive degree to comparative, positive to superlative, and positive to here comparative to positive and superlative to positive. How we can learn this? It's going to be very easy for you because I'll make it for you easy. Okay, let us start learning. Change the degree. We understood about this positive, comparative, and superlative degree. Now we'll learn how to change. Now remember first rule: whenever we have to compare only 2 objects or things, we must use only positive and comparative डिग्रीज. सो दोस्तों याद रखना, जब भी हमें 2 चीजों की कंपैरिजन करनी हो, सिर्फ 2 चीजों की, तीसरी नहीं, ओनली 2 थिंग्स, देन वी मस्ट यूज ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. यहां हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है. तो विल फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज अ सेंटेंस, हाउ वी कैन चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव and comparative to positive. What are the rules we need to follow? Let me write on the board first. Okay, suppose I write a sentence here.
बड़ौदा इज एज बिग एज सूरत. बड़ौदा इज एज बिग एज सूरत, right? Baroda is as big as Surat. If I write here, so this degree, first you understand what kind of degree is this. This is a positive degree because we have as and as here. So this is a positive degree. How we'll turn it into comparative? Now very first rule, we have to change here this object 1 with object 2 and object 2 with object 1. So Surat will come here. Okay, second thing, when we change a sentence from positive to comparative, if the sentence in the positive degree is affirmative, in comparative we have to make it negative. मतलब ये सेंटेंस में अगर नो नॉट नेवर नहीं है, आपको एफर्मेटिव नेगेटिव का तो पता होगा. जिस सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं होता है वो सारे सेंटेंस एफर्मेटिव होते हैं, और जिस सेंटेंस में नो नॉट नेवर होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. तो ये सेंटेंस क्योंकि एफर्मेटिव है, जब वो कंपैरेटिव में जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव. सो व्हाट विल बी आंसर हियर? बड़ौदा इज एज बिग एज सूरत. तो सूरत, अब यहां ये थोड़ी फॉर्मेशन भी चेंज होगी. सूरत इज नॉट, सूरत इज नॉट. अब हमें डिग्री भी चेंज करनी है, तो बिग का क्या हो जाएगा? यहां बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बिगर. सूरत इज नॉट बिगर देन. अब हमेशा याद रखना कंपैरेटिव में देन आता ही है. देन मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब देन. कोई भी डिग्री में कभी भी लिखो कंपैरेटिव के साथ आपको देन लिखना कंपलसरी है. तो सूरत इज नॉट बिगर देन बड़ौदा. अब दूसरी एक बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, लेकिन यहां कभी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है. इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. सपोज बड़ौदा इज एज बिग एज सूरत, तो सूरत इज नॉट बिगर, मतलब बड़ौदा सूरत जितना बड़ा है, सूरत बड़ौदा से बड़ा नहीं है. दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, बट वी चेंज द डिग्री हियर. बड़ौदा इज एज बिग एज सूरत, तो सूरत इज नॉट बिगर देन बड़ौदा. So this was a positive degree which we converted into comparative. Now we'll see next degree. Now we'll see a different sentence here. Ahmedabad is bigger than Baroda. दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री. आपको पता हो गया होगा क्योंकि यहां मैंने देन लिखा है और ये है बिगर. सो वेन एवर यू फाइंड देन, दिस इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव डिग्री. अहमदाबाद इज बिगर देन बड़ौदा. ओके, अहमदाबाद इज बिगर देन बड़ौदा. नाउ अब हमें पहले तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को बदल देना होगा, एक दूसरे की जगह उसको हमें रख देना होगा. तो बड़ौदा, अब ये सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं है? नहीं, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, मतलब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा. तो बड़ौदा इज नॉट, अब बिगर का हो जाएगा बिग, और यहां एज स्लैश एज डैश एज या तो सो डैश एज हम रख सकते हैं. तो बड़ौदा इज नॉट सो बिग एज अहमदाबाद. ये हो गया आपका पॉजिटिव. Ahmedabad is bigger than Baroda. Baroda is not so big as Ahmedabad. दोनों का मीनिंग तो एक ही है. Is that clear? Ahmedabad is bigger than Baroda. Baroda is not so big as Ahmedabad. देखो कितना आसान है, लेकिन ये आप तभी यूज कर सकते हो कि when you have to change only two objects, when you have to compare only two objects, then only you should use positive and comparative degree. Here you must not use superlative degree. Remember friends. अब देख लो ध्यान से कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री जब भी हम बदलते हैं तो क्या चेंज करते हैं. दोनों, एक तो सब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे से बदल देते हैं. अगर सेंटेंस एफर्मेटिव हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो एफर्मेटिव कर देते हैं, और फिर जो डिग्री है वो हम रखते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक सो दैट यू कैन रिमेंबर. जैसे आपको मैथ साइंस में फॉर्मूला होता है, यहां भी मैं एक फॉर्मूला देना चाहूंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, और आप कोई भी सेंटेंस उससे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो. हाउ टू डू दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर.
एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला से आप कोई भी सेंटेंस कभी भी आसानी से बदल सकते हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। द फॉर्मूला इज हियर, सपोज पहले पॉजिटिव सेंटेंस, ए इज एज बिग एज बी। ये फॉर्मूला आप रख लेना, जैसे टेबल्स मैथ्स में रखते हो इस तरह से इसको भी रख लेना। ए इज एज बिग एज बी, आपको बार बार इसको बोला है, ए इज एज बिग एज बी, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ वी टर्न इट टू कंपैरेटिव, बी इज नॉट बिगर देन ए, A is as big as B, तो B is not bigger than A. Next is second sentence I'll write here, comparative. A is bigger than B, तो B is not so big as A. A is bigger than B, तो B is not so big as A. ये दोनों चीज आप हमेशा के लिए रट लोगे तो पॉजिटिव में से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। A is as big as B, B is not bigger than A, and A is bigger than B, तो B is not so big as A. ये आप लिख लेना है आपको और इसको रट भी लेना है। We'll see some examples here. Okay, एक दो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अनेरी is more beautiful than Suneri. Aneri is more beautiful than Suneri. तो सुनेरी को हमें सबसे पहले आगे रखना है। तो सुनेरी is not so beautiful as Aneri. Aneri is more beautiful than Suneri, तो Suneri is not so beautiful as Aneri. Okay. Some more examples I'll write here. Cricket is more popular than football in India. Cricket is more popular than football in India. Okay, what will be the answer? तो आंसर ये होगा कि football is not so popular as cricket in India. Okay, football is not so popular as cricket in India. Next, one more sentence we'll see here. Amit is as clever as Sumit. Amit is as clever as Sumit. तो ये पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव क्या होगा? तो सुमित इज नॉट क्लेवरर देन अमित. Sumit is not cleverer than Amit. So these are the examples we have seen. And now it must have been clear for you to understand how we can change a sentence from positive to comparative and comparative to positive. Okay, but this is, we have seen only positive and comparative degree. Now we'll see superlative degree also. Now it is somewhat difficult and it is somewhat different to change a sentence from superlative to positive and comparative. So please be careful. Okay, now here we'll see this, but it will be very simple for you. I am very much sure about you. You can see here,
I will explain it with some examples also so that it can be very easy. Now you understood positive and comparative. Now we have to understand superlative. Now you know that superlative degree can be changed with any of the degree. It can be changed with positive also, and it can be changed with comparative also. You can see both of them. Okay. Now when I will write here on the board so that you can understand. When we have to compare one thing with any other thing, when we have to compare one thing or object with many other things, we must use all 3 degrees. यहां हमने तीनों डिग्री का यूज करना है. किस तरह से करना है, चलो अब समझते हैं. अब इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला दे दूंगा. पॉजिटिव में क्या होता है, इसका पॉजिटिव थोड़ा अलग होता है. मतलब वो पॉजिटिव से आप पता कर सकते हो कि ये कंपैरेटिव में होगी या सुपरलेटिव में होगी या दोनों में होगी. कुछ पॉजिटिव सेंटेंस सिर्फ जब 2 की कंपैरिजन हो तो सिर्फ वो कंपैरेटिव में चेंज होंगे. लेकिन कुछ पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारे ऑब्जेक्ट से होती है, तब आप उसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो. विल सी हियर ऑन द बोर्ड. सो फर्स्ट आई विल टेल यू हियर पॉजिटिव. अब सुपरलेटिव में से पॉजिटिव जब करेंगे तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा. पहले हम सुपरलेटिव का फॉर्मेशन देखते हैं. व्हाट इज सुपरलेटिव, वो डिग्री कैसे फॉर्म होती है. तो विल सी हियर. सुपरलेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहां इज, एम, आर और जो भी वर्ब होता है, एंड देन कम्स व्हाट कम्स द. सुपरलेटिव में द कंपल्सरी है. द के बाद द मोस्ट, या तो वर्ब के बाद EST आना कंपल्सरी है. द मोस्ट और EST, दिस इज कंपल्सरी. आई विल शो यू हाउ. देन यहां क्या क्या मस्ट होता है हम देख लेते हैं. द मोस्ट EST. अब ये कंपैरेटिव में क्या होता है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो कंपैरेटिव में थोड़ा सा चेंज होता है. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव थोड़ा बहुत सेम जैसी है. तो सब्जेक्ट, वर्ब, जो भी वर्ब हो, उसके बाद मोर, या तो मोर लगेगा आपको पता है, या तो ER लगेगा. फिर कंपल्सरी आपको क्या लगाना है, याद है ना, देन लगाना है. देन लेकिन देन के साथ कुछ और भी लगाना पड़ेगा यहां. देन एनी अदर, दिस इज कंपल्सरी. इतना याद रखना, देन के साथ आपको देन एनी अदर कंपल्सरी लगाना है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. देन अब हमें देखनी है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री थोड़ी अलग होती है यहां. इसमें ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में से जब पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा नो अदर से होती है. किससे होती है, नो अदर. सो विल राइट हियर नो अदर, देन वर्ब, देन सो एज, और यहां सब्जेक्ट क्लास में आता है. एक बात आप नोटिस किया आपने, जब सुपरलेटिव डिग्री में से हम कोई सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, कंपैरेटिव में फर्स्ट आता है, लेकिन पॉजिटिव में वो सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है. इतना याद रखना, बहुत आसान होगा आपके लिए. चलो तो सेंटेंस लिखते हैं और सीखते हैं. ओके. Whenever we have to compare one thing object with many other things, we must use all 3 degrees. अब वही एग्जांपल देखते हैं. देखो, अगर मैंने सिर्फ बड़ौदा की कंपैरिजन सूरत के साथ की, अहमदाबाद की कंपैरिजन बड़ौदा के साथ की, अहमदाबाद की कंपैरिजन बड़ौदा या सूरत किसी के भी साथ की, लेकिन वो सिर्फ 2 की कंपैरिजन थी. अभी अहमदाबाद की मैं कंपैरिजन गुजरात की सारी सिटीज के साथ करूंगा, तब सेंटेंस क्या होगा वो हमें देखना है.
ओके, विल सी हियर सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट अहमदाबाद। अहमदाबाद अ वर्ब इज, अब सपोज हमें बिग वर्ड लेना है तो यहां सुपरलेटिव डिग्री बिग का क्या लिखेंगे, बिगेस्ट। अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। ओके, क्या हुआ, अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी, देखो हमने सुपरलेटिव डिग्री ली है। ओके, EST और द रखा है, दिस इज कंपल्सरी। अब कंपैरेटिव में थोड़ा ही चेंज होगा, आप याद रखना। तो अब इसमें भी पहले सब्जेक्ट मतलब अहमदाबाद पहले आएगा, अहमदाबाद इज भी आएगा। अब यहां बिगेस्ट की जगह क्या आएगा, याद है आपको, याद है, चलो मैं ही बता देता हूं। बिगेस्ट की जगह आएगा बिगर। अहमदाबाद इज बिगर, लेकिन सिर्फ देन नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा आगे। अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर, अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ गुजरात। तो यहां क्या चेंज हुआ, देखा आपने, यहां हुआ द बिगेस्ट सिटी, द सुपरलेटिव, और यहां ER देन एनी अदर। तो अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ गुजरात, तो ये पॉजिटिव का करेक्ट कंपैरेटिव ये हुआ। अब हमें बात करनी है पॉजिटिव की। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में हम शुरुआत करते हैं नो अदर से, तो यहां लिखना पड़ेगा नो अदर सिटी ऑफ गुजरात, नो अदर सिटी ऑफ गुजरात इज, सो अब ये बिगेस्ट और बिगर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, बिग होगी। नो अदर सिटी ऑफ गुजरात इज सो बिग एज अहमदाबाद। तीनों डिग्री हो गई। अब देखो, अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ गुजरात, एंड नो अदर सिटी ऑफ गुजरात इज सो बिग एज अहमदाबाद। अब हमने पॉजिटिव में क्या चेंज किया है, तो सो और बिग, सो एज या तो बिग, सो एज या तो एज आप लिख सकते हो, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो अदर लिखना। यहां चीज है देन एनी अदर लिखना, और यहां सुपरलेटिव डिग्री, ये बहुत ही आसान है। विल सी सम एग्जांपल्स, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, let us go through some examples. I'll write here on the board. Swimming is the best exercise. Swimming is the best exercise. ये कौन सी डिग्री है, तो ये डिग्री है, क्योंकि बेस्ट है, ये डिग्री है सुपरलेटिव। अब उसको हम कन्वर्ट में कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव में। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये है सुपरलेटिव, हम कन्वर्ट करेंगे उसको कंपैरेटिव में। तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, उसका आंसर क्या होगा, स्विमिंग इज, बेस्ट का कंपैरेटिव याद है, बेटर। स्विमिंग इज बेटर देन एनी अदर, भी कंपल्सरी लिखना है, एनी अदर एक्सरसाइज। सो स्विमिंग इज बेटर देन एनी अदर एक्सरसाइज। अब उसका पॉजिटिव क्या होगा, किससे शुरुआत होगी, याद है आपको, नो अदर से। नो अदर एक्सरसाइज इज सो गुड एज स्विमिंग। No other exercise is so good as swimming. Is it clear? Okay. Now we'll see some other example. Australia is the smallest continent.
Australia is the smallest continent. Okay, this is a superlative degree and we'll convert it into comparative. So answer will be Australia is smaller than any other continent. Okay, and its positive degree, no other continent is so small as Australia. Correct? Now we'll see one more example. Now this example I will convert it from positive to comparative and superlative so that you can understand more and easily. No other Indian poet is so popular as Tagore. No other Indian poet is so popular as Tagore. No other Indian poet is so popular as Tagore. अब इसका हम ये डिग्री हमने थोड़ी अलग की है, ये है पॉजिटिव डिग्री. अब इसको हम पहले कंपैरेटिव करेंगे, बाद में सुपरलेटिव करेंगे. तो क्या होगा इसका कंपैरेटिव? तो हमें पहले सब्जेक्ट सबसे आगे ले लेना है. आंसर क्या होगा? टैगोर is more popular, Tagore is more popular than any other, भी कंपल्सरी लिखना है, than any other Indian poet. Tagore is more popular than any other Indian poet. तो ये हो गया कंपैरेटिव. अब सुपरलेटिव थोड़ा चेंज करना है, तो क्या होगा? Tagore is the most popular Indian poet. Tagore is the most popular Indian poet. So you can see these examples, how we change this superlative into comparative positive, and how we change this positive sentence into first comparative and then superlative. So I think the things would have been very easy for you to understand. आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप दो चीज़ों की कंपैरिजन करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है. लेकिन आप एक चीज़ का कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से करते हो, तब आपको तीनों डिग्री मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो यू कैन सी हियर ऑल दीज एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन मेक इट वेरी इजी फॉर यू to change the degrees without changing their meaning. It will be very easy and understandable for you now. Okay, thank you very much, friends.